Hello everyone. In this day, we will study a state of matter. Matters around us exist in three different states: solid, liquid, and gas. First, we discuss about the solid state of matters. Generally, we know that solid are known for their hardness and rigid nature. ओके, सॉलिड को जनरली हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, हार्ड होता है और कठोर होता है. ठीक है. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स आर: फर्स्ट, solid have fixed shape. Generally, solids have fixed shapes. They do not change their shape. Even put in different container. हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा. ओके. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स: सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स बट रीगेन द सेम व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड. फॉर एग्जाम्पल, रबर बैंड. ओके, रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, सॉलिड है फिर भी वो स्प्रेड हो जाएगा, बड़ा सा बन जाएगा, है ना. फिर इसको हम छोड़ देंगे तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. तो ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स था, सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स: सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. इट रिलेटेड द डेंसिटी. वॉल्यूम जनरली रिलेटेड टू डेंसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी may be defined as mass per unit volume is called density. Therefore, density equal to mass by volume. Mass is denoted by m and volume is denoted by v. And if we talk about the unit of density equal to unit of mass is kg and volume is measured by liters or smallest units kg per decimeter cube. That means 1 liter equal to 1 decimeter cubes. Fourth characteristics: the solid have negligible compressibility. You know that कि any solid have zero compressibility. It is very difficult to compress a solid on applying the pressure. For example, we cannot press a stone. क्या हम एक स्टोन को प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तब हम कह सकते हैं कि solid have negligible compressibility, नहीं के बराबर होता है ना. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स: the solids have negligible kinetic energy of the particles. Yes, जो भी सॉलिड्स होते हैं उसमें किसी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा. द काइनेटिक एनर्जी इज लिंक्ड विद द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. यस, यू नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिंक्ड होता है किसे, मोशन से. तो ये बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी इज लिंक्ड विथ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड पैक्ड, नो काइनेटिक एनर्जी. And last characteristics: solid do not have the property of diffusion. Yes, solid में diffusion भी संभव नहीं है. When a particle of one substance occupy the vacant space present in the particles of the other substance, this is called diffusion. But solid have no diffusion. For example, rocks, stone, wood, sand, crystalline solid like sugar, salt, metals like iron, copper, nickel, etc. All these are the examples of solid. Hence, a solid may be defined as fixed shape and volume. Yes? You see here, this is the particle of solids. They are closely packed to each other. Okay? This is the particles of solids. All particles are very closed packed. It's have no possible to kinetic energy, no compressibility. क्या हम इसको प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स.
डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स। सेकेंड स्टेट है हमारे पास द लिक्विड स्टेट। व्हाट इज द लिक्विड? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड, तो आप कहेंगे द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, यस, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यस। सपोज करिए वी टेक अ 1 liter of water and put even anything, they can take their shape, but their volume 1 liter water is fixed. Okay, so यही कह रहा है द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, बट जो 1 liter वाटर है वो तो आपका फिक्स है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, benzene, etc. All these are liquids. The one unique ability or property of liquid have the liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Yes, solid are not rigid, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, fluid कहते हैं। Why? Because the property of the liquid flow and change their shape, so दे आर कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूइड कहते हैं। एंड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स आर लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ओके। सेकेंड, लिक्विड ऑक्यूपाई डेफिनिट वॉल्यूम। थर्ड, लिक्विड हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी। लिक्विड में क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है, जबकि रिजिडिटी नहीं होता है, हार्डनेस नहीं होता है। लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, यस, तभी तो हम लिक्विड में क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, है ना, स्विम कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट इज मोर देन द सॉलिड, यस। इसके जो पार्टिकल हैं थोड़ा क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, जिसके कारण हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, किसमें, वाटर में। तो ये कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी of the particles in liquid state is more than the solid. Particles in the liquid state can easily diffuse. Yes, the particle in the liquid state can easily diffuse due to lesser interparticle force of attraction, है ना। जिसके कारण हम लोग वाटर में शुगर को ऐड करके डिजोल्व कर सकते हैं, सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन इजीली डिफ्यूज ड्यू टू लेसर इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये देखिए पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है, जिसके बीच में क्या है, गैप है, जो आपका थोड़ा बहुत क्या है, मूवमेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर वी कैन टॉक अबाउट गैसियस स्टेट। क्या है हमारे पास, गैसियस स्टेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैसेस को डिफाइन कैसे करेंगे। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसका फिक्स्ड शेप होता है और ना ही इसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो होता क्या है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर सो वीक, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज सो लार्ज, जो स्पेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, दैट द पार्टिकल्स बिकम कंप्लीटली फ्री टू मूव रैंडमली। इसीलिए जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या होते हैं, मूव करते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। फर्स्ट, शेप एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ए गैस हैव नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम। इट टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट, जहां पर इसको हम रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है ना, जब उसको हम वो क्लोज करके रखते हैं। सेकेंड थिंग हम बात करें डेंसिटी ऑफ गैसेस। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज लोअर देन दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। यस, जो गैसेस हैं उसकी डेंसिटी बहुत ही क्या होते हैं, वीक होते हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। थर्ड जो हम बात करें स्टूडेंट्स, वो है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज वेरी हाई, क्योंकि हम
किसी भी गैसेस को कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लार्ज, इंटरमोलिकुलर स्पेस लार्ज होने के कारण हम किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए गैस आर बिलो द रूम टेम्परेचर। यस, रूम टेम्परेचर से भी इसका क्या होता है, गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है। सपोज करिए कि आपका रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो जो गैसेस है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 25 से कम होगा। दे आर लोअर देन दोज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। ये सॉलिड और लिक्विड से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके। फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। यस, ए गैस कैन बी एक्सपेंड ऑन हीटिंग। किसी भी गैस को अगर हम, वो गैस है फिर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और जब उसको हम कूलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, है ना। Okay, thank you for watching this video.